Hello everyone and welcome back to my playlist of pathology. We are discussing general pathology. टॉपिक का नाम है नियोप्लेजिया और जो किताब हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज मीडियम रॉबिन्स या रॉबिन्स की बेसिक की जो पैथोलॉजी की बुक है. टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी कैंसर जीन्स. ओके, obviously it's a very extensive topic, and these days because of the techniques like next generation sequencing it is possible to sequence the whole genome of cancer and of a person. So this is getting more and more advanced day by day. So in this chapter what I will try to do is to give you the basic idea and the basic concept related to the cancer genes. Okay, now it would be argued that the proliferation of literature on the molecular basis of cancer has outpaced the growth of even the most malignant tumors. So that's kind of a philosophical line which is very much true, I believe, कि जो literature हम देख रहे हैं दिन ब दिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है जो कैंसर के साथ एसोसिएटेड मोलिकुलर बेसिस यानी जीन्स का जिक्र करता है, और एक्चुअली इट इज गोइंग टू आउटपेस द ग्रोथ ऑफ द. हम सोचते थे ऐसा कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो करते हैं, बट भाई मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और तेजी से ग्रो कर रही है. रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स अलाइक कैन ईजिली गेट लॉस्ट इन द ग्रोइंग फॉरेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. वेरी ट्रू. अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो सो मेनी जीन्स एंड you'll feel get lost कि भाई कहाँ मैं किसी जंगल में खो गया हूँ, समझ नहीं आ रहा कौन सी जीन पढ़नी है कौन सी छोड़नी है. But it has become eminently clear that cancer is a disease caused by mutations that alter the function of finite subset of about 20,000 genes that we have. Basically, इस हेडिंग में इस चैप्टर में व्हाट दे हैव डन इज अ वेरी नाइस जॉब कि दे हैव गिवन यू ऑल द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ कैंसर जीन्स एक्चुअली आर इन्वॉल्व्ड इन कार्सिनोजेनेसिस. कार्सिनोजेनेसिस का मतलब कैंसर होना. तो ये जनरल कॉन्सेप्ट अगर आप ग्रिप कर लोगे तो आपको पूरा जो ओवरऑल पिक्चर, जब भी लिटरेचर पढ़ोगे कोई भी बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जीन्स किस तरह से अफेक्ट करती हैं, किस तरह से कैंसर करवाती हैं. बेसिकली जितनी भी जीन्स का हम जिक्र करते हैं वो जीन मॉलिक्यूलर लेवल पे किसी ना किसी पाथवे ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को इंटरफेयर कर रही होती है. अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे. सो इतना तय है कि कैंसर के कोर पे अगर देखें सो देयर आर ऑलवेज जीन्स इन्वॉल्व्ड. एट द कोर ऑफ द कैंसर जीन म्यूटेशंस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट. ओके, इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक. फॉर सिंप्लिसिटी वी विल रेफर टू दीज जीन्स एज कैंसर जीन. अच्छा, अब ये जो नाम दिया है ना कैंसर जीन, इसका बेसिकली मतलब ये है कि वो तमाम म्यूटेशंस जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है, ऑल दोज जेनेटिक म्यूटेशंस आर कॉल्ड कैंसर जीन्स. Okay, cancer genes can be defined as genes that are recurrently affected by genetic aberrations in cancer, presumably because they contribute directly to the malignant behavior of the cancer cells. Causative mutations that give rise to cancer genes may be acquired by the action of environmental agents such as chemicals, such as radiations, viruses. ये वो सारी चीजें हैं which can cause mutations. So say for example you have a genome और ये आपका double stranded DNA है, although double stranded DNA यूं twisted होता है. So if this is your double stranded DNA and if you have a sequence specific such as A, G, C, T and so on, and if any one of the base pair is changed to something else, this is what we call the mutation. और इस mutation की बहुत सारी causes हो सकती हैं. There can be different chemicals which can cause this mutation. There can be radiations which can cause this mutation. There can be some viruses which can cause the mutation. So you should know that all these players can cause mutation. और ये जो mutations हैं they will then ultimately be known as mutations which are caused by the environmental factor, because chemicals are environmental factors, radiations are environmental factors, viruses are environmental factors. So they can change the genetic makeup of a cell. They can also be inherited in the germline. अब ये मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में. कॉन्सेप्ट आएगा कि germline mutations किसको बोलते हैं, somatic mutations क्या होती हैं. So hold on to this, we will discuss this. Okay, if such mutation drives carcinogenesis, a key prediction is that each cell in an individual tumor should share mutations that were present in the founding cell at the time of the transformation. This expectation has been realized in all the tumors, and the bottom line ये है इस पूरे पैराग्राफ का कि कैंसर
at its root is basically a genetic disorder. That's the bottom line, okay? कि in almost every cancer you will find some of the gene mutated. Cancer genes number in hundreds and new ones are still being discovered. So basically बात ये है कि there are so many mutations which have already been discovered which are associated with cancers, and obviously the literature is increasing day by day, okay? Not only these genes numerous, but they may have unpronounceable acronyms of their names that are difficult to remember as well. So that is an important point कि these genes which are emerging these days, you know, लंबे चौड़े नाम है, याद रखना मुश्किल है, but what they have done, the oncologists और ये जो सारी कमेटी रिसर्च वाली international guidelines बनाते हैं, what they have done, they have divided and they have stratified the genes into one of the following groups. एक ग्रुप को नाम दिया है oncogenes. अब देखें oncogene नाम से जाहिर है कि these are the genes which will cause cancer. Word onco का मतलब है cancer, gene मतलब वो genes जो cancer करवाएंगे. These are the genes that induce a transformed phenotype when expressed in the cell by promoting increased cell growth. यानी अगर एक normal cell है और उस normal cell में कोई म्यूटेशन हो जाती है, सपोज दिस इज अ सेल, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका जीनोम है, और अब यहाँ कोई म्यूटेशन होकर एक ऑन्कोजीन बन गई है. सो द जॉब ऑफ द ऑन्कोजीन इज कि ये सेल बहुत सारे अपने प्रोजेनी में डिवाइड होता रहेगा. सो इंक्रीज्ड सेल्यूलर proliferation is job number 1 of oncogenes. Oncogene का पहला काम ये है increase cell growth. Okay? A major discovery in cancer was the realization that oncogenes are mutated or overexpressed versions of normal cellular genes which are proto-oncogenes. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है आपको याद रखना कि देखें, in our normal cells we have genes which regulate cell cycle, which regulate cell growth, which regulate cell proliferation. So for example, this is a normal cell और ये उस normal cell का न्यूक्लियस है, और इसके अंदर सपोज एक जीन है और इस जीन को मैं नाम दे रहा हूं प्रोटो ऑन्कोजीन. प्रोटो ऑन्कोजीन है, ये ऑन्कोजीन नहीं है. सो प्रोटो ऑन्कोजीन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. दिस इज प्रेजेंट इन यू एंड मी एंड एनीवन एल्स हु डज नॉट हैव कैंसर. सो प्रोटो ऑन्कोजीन्स आर देयर. लेकिन अगर किसी वजह से, रेडिएशन की वजह से, केमिकल की वजह से, किसी वायरस की वजह से इस प्रोटो ऑन्कोजीन में हो गई म्यूटेशन, और म्यूटेशन की वजह से नाउ इसमें कोई चेंजेस हो गए, एंड नाउ वी कॉल इट एज ऑन्कोजीन. अब ये एक दफा जब ऑन्कोजीन बन गई तो इट विल नो मोर बी प्रोड्यूसिंग proteins which are under the normal cell cycle. अब ये सेल जो है इसको कोई इसकी ग्रोथ को रोकने वाला नहीं है, इसकी प्रोलिफरेशन रुकेगी नहीं, चलती जाएगी, बढ़ती जाएगी. और यानी प्रोटो ऑन्कोजीन अगर म्यूटेट होकर ऑन्कोजीन बना लेगी, देन ऑन्कोजीन इज समथिंग व्हिच कैन कॉज कैंसर. सो रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके? अब बहुत सारी ऑन्कोजीन्स होती हैं, बट हर वो जीन जो सेल प्रोलिफरेशन को इंक्रीज करेगी और कैंसर करवाएगी, उसे हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं? ऑन्कोजीन की कैटेगरी में. ओके, राइट. नाउ दे आर कंसीडर्ड डोमिनेंट जीन्स बिकॉज म्यूटेशंस इन्वॉल्विंग अ सिंगल एलील इज अफेक्टेड. ये हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, इस वक्त बात समझ में नहीं आएगी. तो एक कैटेगरी जो कैंसर जीन्स की है उनका नाम है ऑन्कोजीन्स, और ये बहुत सारी ऑन्कोजीन्स विच आर नोन टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रोटो ऑन्कोजीन. ठीक है, एंड प्रोटो ऑन्कोजीन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. ये बात समझने की है कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स आर नॉर्मल, ऑन्कोजीन्स आर नॉट normal, they cause tumor, they are cancerous. Okay, now एक और category which we have to understand is the tumor suppressor gene. अब जरा ये बात सुनिए जनाब, what is a tumor suppressor gene? Now, these are the genes that normally prevent uncontrolled growth, and when mutated or lost from the cell, allowed the transformed phenotype to develop. Often both normal alleles of the tumor suppressor gene must be damaged for the transformation to occur. Tumor suppressor genes can be placed in two general groups called the governors that act as an important brakes on the cell proliferation, and the guardians that are responsible for sensing genomic damage. Some guardian genes initiate and choreograph a complex damage control response that leads to cessation of proliferation. If the damage is too great to be repaired or
इंड्यूस एपोप्टोसिस। अब ये बात जरा समझने की कोशिश करें, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या हैं। नाउ गाइस, बात ये है कि हम सब के सेल्स में बहुत सारी नॉर्मल जीन्स हैं, जिनमें से एक जीन की कैटेगरी है ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब देखो, ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होगी न्यूक्लियस में, सपोज दिस इज द ट्यूमर सप्रेसर जीन, इसका काम है to stop cell proliferation, to stop cell proliferation. Now this is the normal job of the tumor suppressor gene. नाम से जाहिर है, देखें, ट्यूमर सप्रेसर, सप्रेसर का क्या मतलब है? रोकना। किस चीज को रोकेगा ये? नॉर्मल सेल्यूलर ग्रोथ का। सो दिस इज पार्ट ऑफ द नॉर्मल फिजियोलॉजी। लेकिन अगर ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जो हम सब में नॉर्मली प्रेजेंट होती है, वन ऑफ द एग्जांपल फॉर दिस जीन इज P53 फॉर एग्जांपल, हम सब के जीनोम में ये जीन मौजूद है और इट इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, तो इसका काम है सेल ग्रोथ को कंट्रोल करना बाय पुटिंग ब्रेक्स ऑन द सेल ग्रोथ। और अगर, अब सुनिए गौर से, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आई एम थ्रोइंग, अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन हो जाए, और म्यूटेशन भी कैसी म्यूटेशन, जरा सुनिए, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। देखें, दो तीन तरह की म्यूटेशंस अभी हम डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। पहला मैं नाम थ्रो कर रहा हूं, लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन कोई मुश्किल चीज नहीं है समझने के लिए, क्योंकि इसका नाम क्या है? लॉस ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन खत्म हो जाएगा। किसका फंक्शन खत्म हो जाएगा? ट्यूमर सप्रेसर जीन का फंक्शन खत्म हो जाएगा। ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या काम करती थी? सेल को मल्टीप्लाई होने से रोकती थी। अब अगर इसका फंक्शन खत्म हो जाएगा तो सेल को मल्टीप्लाई होने से कोई रोकेगा नहीं, और जब सेल को मल्टीप्लाई होने से कोई रोकेगा नहीं तो सेल तेजी से डिवाइड होगा। सो इट्स अ बिट ऑफ कॉन्सेप्चुअल स्टफ, जो कि समझना मुश्किल नहीं है। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स अगर म्यूटेट हो जाएं, और म्यूटेट भी ऐसी कि लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, यानी ट्यूमर सप्रेसर जीन अब अपना फंक्शन नहीं कर रही, इसका फंक्शन क्या था? सेल ग्रोथ को रोकना, और अब सेल ग्रोथ नहीं रुकेगी तो इसका मतलब है कि सेल ग्रोथ होगी। सेल ग्रोथ ज्यादा होगी तो ट्यूमर फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा हैं। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन में कब म्यूटेशन, कैसी म्यूटेशन होगी तो ये ट्यूमर कॉज करेगी? ट्यूमर सप्रेसर जीन में अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी तो ये जीन ट्यूमर कॉज करेगी। आई होप आई मेड इट वेरी क्लियर टू यू। इफ नॉट, देन वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें तो बात समझ में आ जाएगी। ओके, थर्ड कैटेगरी जो हमको समझनी है, दैट इज जीन्स दैट रेगुलेट एपोप्टोसिस। देखें, एपोप्टोसिस क्या है? एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस की जो जीन्स हैं वो भी नॉर्मली हम सबकी बॉडी में मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि अगर मैं कहता हूं कि एपोप्टोसिस की यहाँ पे जीन्स मौजूद हैं, इनमें कैसी म्यूटेशन होगी तो ट्यूमर फॉर्मेशन होगा? ट्यूमर का हॉलमार्क क्या है? व्हाट इज द फाइनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूमर? ट्यूमर का हॉलमार्क है इंक्रीज सेल ग्रोथ। इंक्रीज सेल ग्रोथ इस एपोप्टोसिस वाली जीन का काम नहीं है, क्योंकि एपोप्टोसिस का काम है सेल डेथ करवाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जीन, एपोप्टोसिस वाली जो भी जीन है, अगर ये काम करेगी तो इंक्रीज सेल ग्रोथ तो नहीं होगी। विच ऑल्सो मीन्स कि अगर इस एपोप्टोसिस की जीन में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, यानी अपना काम ना करे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने स्टोरी सारी डिस्कस की थी ट्यूमर सप्रेसर जीन में, अगर एपोप्टोसिस की जीन में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए तो ये अपना काम नहीं करेगी। अपना काम नहीं करेगी तो सेल डेथ नहीं होगी, सेल डेथ नहीं होगी तो सेल ग्रोथ होगी, सेल ग्रोथ होगी तो ट्यूमर बन सकता है। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स भाई बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये बहुत ही मुश्किल से समझ में आने वाली चीजें हैं, but try to see the video again and again. Okay, now genes that regulate apoptosis primarily act by enhancing cell survival rather than stimulating proliferation per se. What happens here is कि यहाँ पर जो apoptosis में जब loss of function mutation होगी तो एक सेल जिसमें इस जीन की वजह से डेथ होनी थी, अब वो डेथ नहीं हो रही, तो सेल सर्वाइवल एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है। सेल डिवाइड ज्यादा नहीं होते, सेल सर्वाइवल का प्रोसेस एस्टैब्लिश हो जाता है। ये सुनिए लाइन, अंडरस्टैंडेबली जीन्स ऑफ दिस क्लास that protect against apoptosis are often overexpressed in cancer cells, whereas those that promote apoptosis tend to be underexpressed or functionally inactivated. यानी apoptosis कराने वाली जो जीन है वो inactivate होंगी, mutated होंगी, loss of function होगा, और apoptosis के against जो जीन्स हैं वो overexpress होंगी, ज़्यादा होंगी, क्योंकि basically कैंसर होने के लिए
ट्यूमर करवाने के लिए एपोप्टोसिस के प्रोसेस को हमें रोकना पड़ेगा, इसे खत्म करना पड़ेगा, तभी जाके ट्यूमर फॉर्मेशन होगी। क्योंकि ट्यूमर को चाहिए सेल सर्वाइवल, ट्यूमर को चाहिए सेल ग्रोथ, एपोप्टोसिस सेल ग्रोथ के आड़े आता है। तो म्यूटेशन ऐसी होगी कि एपोप्टोसिस को खत्म किया जाए, म्यूटेशन ऐसी होगी कि ट्यूमर सप्रेसर जीन को खत्म किया जाए, यानी लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। ओके, सो ट्यूमर होने के लिए ट्यूमर सप्रेसर जीन में भी लॉस ऑफ फंक्शन होता है और एपोप्टोसिस के जीन्स में भी लॉस ऑफ फंक्शन होता है। ओके, लेकिन जो प्रोटोऑन्कोजीन्स हैं इनमें गेन ऑफ फंक्शन होता है, यानी प्रोटोऑन्कोजीन जो सेल डिवीजन करवाती हैं, अगर उनमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी तो अपना काम वो ज्यादा करेंगी। इनका काम क्या था, एक सेल से 2 सेल बनाना, 2 सेल से 4 सेल बनाना, और अब जब इनमें गेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो ये काम और तेजी से बढ़ जाएगा, ट्यूमर फॉर्मेशन हेल्प होगी। सो ये लॉस ऑफ फंक्शन, गेन ऑफ फंक्शन, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ओके, नाउ टू दिस list may now be added the genes that regulate interaction between tumor cells and host cells, as these genes are also recurrently mutated or functionally altered in certain cancers. Particularly important are genes that enhance or inhibit recognition of tumor cells by the host immune system. अब ट्रेडिशनली अगर बात करें आज से 10 साल पहले की, तो कैंसर जीन्स को क्लासिफाई करते थे 1 ऑन्कोजीन में एंड 2 ट्यूमर सप्रेसर जीन में। दैट वाज इट, कि भाई 2 तरह की जीन्स होती हैं। ऑन्कोजीन वो होती हैं जो कैंसर करवाती हैं, इंक्रीज ट्यूमर, और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स वो जीन्स होती हैं जो ट्यूमर्स को रोकती हैं, दे रिड्यूस ट्यूमर इंसिडेंस। तो ये 2 जीन्स का जिक्र होता था, और नॉर्मली बॉडी में ये अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन। अब अगर म्यूटेशन हो जाएगी प्रोटोऑन्कोजीन में, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, तो ट्यूमर ज्यादा होगा। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगी तो ट्यूमर ज्यादा हो जाएगा, इफ देयर इज लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। सो मोर एंड मोर ट्यूमर। तो ये कॉन्सेप्ट्स इस तरह से थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एपोप्टोसिस की जीन्स ने अपनी जगह बनाई है कि भाई एपोप्टोसिस भी जेनेटिक लेवल पे कंट्रोल किया जाता है कैंसर्स में। और मोर रिसेंटली ये सब ग्रुप ऑफ जीन्स, जिसमें देखो एक प्रॉपर्टी कैंसर सेल की ये होती है, आगे चल के पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, किसी और वीडियो में ये बात आएगी जब हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर पढ़ाऊंगा, कि कैंसर की एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई कैंसर, ये रहा कैंसर का सेल सपोज, और ये बराबर से लिम्फोसाइट गुजर रहा है, तो कैंसर सेल जो है अपने आप को इनविजिबल कर देता, इट मेक्स इटसेल्फ इनविजिबल, यानी इम्यून सेल बराबर से गुजर जाएगा, इसको देखेगा ही नहीं, देखता तो एक्ट करता, एक्शन करता, साइटोकाइन रिलीज करता, ये डैमेज होता, लेकिन भाई ये ब्लाइंड हो जाते हैं इम्यून सेल्स। क्यों? क्योंकि होस्ट और ट्यूमर का जो इंटरेक्शन है वो ऑल्टर कर देती हैं ये जीन्स। कैसे, अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे, बट दैट इज नाउ सबसेट नंबर 4। तो कैंसर में जो जो म्यूटेशंस हैं उसमें दिस इज द 4th सबसेट ऑफ म्यूटेशन व्हिच कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू कैंसर फॉर्मेशन। तो कैंसर जीन्स कितनी तरह की होती हैं अगर आपसे पूछा जाए, सो देयर आर hundreds and thousands of names that we can take of particular genes, लेकिन broad categories हैं oncogenes, tumor suppressor genes, apoptosis associated genes, and genes which affect the host and tumor cell interaction. Okay? Now, in most instances, mutations that give rise to cancer are acquired during life and are confined to cancer cells. However, causative mutations sometimes are inherited in germline and are therefore present in every cell of the body. ये मैं बताता हूँ, ये concept बहुत important है. Placing the affected individual at high risk of developing cancer. Understandably, in families in which germline mutations are passed from generation to generation, cancer behave like inherited trait. We will touch on some important familial syndromes and अभी भाई ये कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर पार्क करवाया था, ये मैंने कहा था ये चीज पार्क कर लो, ये देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, थोड़ी देर में समझाऊंगा, तो अब वो थोड़ी देर आ चुकी है। 2 वर्ड्स लिखूंगा और 2 वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए तो समझो आप अगर कैंसर की फील्ड में काम कर रहे हो तो जिंदगी आसान। एक है जनाब सोमैटिक म्यूटेशन, a mutation which we call somatic mutation, और दूसरा वर्ड जो मुझे समझाना है वो है germ line mutation। भाई ये गौर से सुन लो, देखो पहले germ line mutation समझाता हूं। अगर
ये सारी कहानी कहां से शुरू होती है जिंदगी की? द लाइफ बिगिंस व्हेन स्पर्म फर्टिलाइजेस द ओवम, है ना, ऐसे ही ना। ये स्पर्म जब ओवम को फर्टिलाइज करता है तो क्या चीज भाई बन जाती है? जाइगोट बन जाता है। सो दैट इज द जाइगोट, और इससे फिर पूरी ह्यूमन बॉडी बनेगी। और बेसिकली जो क्रोमोसोमल मटेरियल स्पर्म में है और जो क्रोमोसोमल मटेरियल ओवम में है, ये दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जाइगोट में। तो अब इस जाइगोट में एग्जैक्टली वही क्रोमोसोमल मटेरियल है जो स्पर्म में था और ओवम में था, वो मिलके इधर आ गया। और अब जाइगोट से पहले 2 सेल बनेंगे, फिर 4 सेल बनेंगे, हर सेल में यही जीनोम ट्रांसफर होगा। तो अगर यहां पर एक जीन म्यूटेटेड है स्पर्म में या एक जीन म्यूटेटेड है ओवम में, तो जाइगोट में वो म्यूटेटेड जीन आ जाएगी और फिर जितने सेल बॉडी के बनेंगे उन सब में वो म्यूटेटेड जीन चली जाएगी। इसे कहते हैं germline mutation, which transfers to the zygote and from the zygote to all cells of the body. You getting my point? Germline mutation is the mutation is either sperm or ovum. If the mutation is happening in the genome of the sperm or the ovum, this is called germline mutation, and the germline mutation transfers to all cells of the body, and this is what is written here. Understandably, in families in which germline mutations are passed from generation to generation, this is why they are passing from generation to generation, and they will affect, they will be transferred to every cell. So the germline mutations are therefore present in every cell of the body. They will be present in every cell of the body. So this is the concept कि अगर म्यूटेशन स्पर्म में है या ओवम में है तो ये जाइगोट में चली जाएगी, और जाइगोट से जितने सेल बनेंगे उन तमाम सेल्स में ये म्यूटेशन चली जाएगी. सो द germline mutation is number 1, it is transferred from one generation to the other. स्पर्म में अगर ये म्यूटेशन थी तो इसका मतलब ये है कि फादर में ये म्यूटेशन थी. ओवम में अगर ये म्यूटेशन थी तो इसका मतलब ये है कि मदर में ये म्यूटेशन थी. फादर में थी या मदर में थी, नेक्स्ट जनरेशन में चली गई ना, बिकॉज स्पर्म और ओवम ने मिलकर जाइगोट बनाया और ये यहां अब आ गई ना म्यूटेशन. सो दिस म्यूटेशन बिहेव्स हेरिडिटरीली. ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की तरह ट्रांसफर होती है. जैसे आपका हेयर कलर है, जैसे आपकी लेंथ है, ये सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं बिकॉज स्पर्म और ओवम के जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो जाइगोट में ट्रांसफर होते हैं. बिल्कुल ऐसे ही अगर जर्मलाइन कोई म्यूटेशन है तो वो म्यूटेशन भी ट्रांसफर हो जाएगी. ये बात आई होप समझ में आ गई. वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को बार बार सुन लो ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. सोमैटिक म्यूटेशन क्या बोला है? सोमैटिक म्यूटेशन ये है कि भाई जर्मलाइन म्यूटेशन नहीं थी, पेरेंट से ट्रांसफर नहीं हुई. अब इस बंदे में ये बंदा कहीं काम करता है ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा एक्सरे एक्सपोजर है या केमिकल एक्सपोजर है, तो इसकी बॉडी के इस पार्ट में, हैंड में फॉर एग्जांपल, एक्सपोजर की वजह से अब यहां पे कुछ सेल्स में, स्किन के कुछ सेल्स में म्यूटेशन हो गई. अब ये जो म्यूटेशन है ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगी, इसके बेटे में, बेटी में नहीं जाएगी. क्यों? क्योंकि ये म्यूटेशन तब ट्रांसफर होती अगर ये स्पर्म या ओवम में होती. अभी तो ये म्यूटेशन ओवम या स्पर्म में नहीं है, ये कहां पर मौजूद है? स्किन में मौजूद है. तो इसको हम नाम देते हैं सोमैटिक म्यूटेशन, या इसे हम सोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं, या समटाइम्स इज आल्सो कॉल्ड एक्वायर्ड म्यूटेशन. एनीवेज, germline mutation can also be acquired mutation, so forget about this word, it will actually confuse you. So somatic mutation is something which happens in any cell of the body other than the sperm and ovum. sperm और ovum में अगर म्यूटेशन होगी तो that is the germline mutation. अब ये एक तो ये बात समझ में आपको रखनी है कि जो germline mutation है, number 1, it transfer from one generation to the other. Somatic mutations do not transfer from one generation to the other. Number 2, ये जो somatic mutations हैं, मुझे बताओ क्या ये बॉडी के हर सेल में होगी? नहीं भाई, ये सिर्फ यहां के सेल म्यूटेट हुए तो ये बाकी हर जगह कैसे जाएंगे? लेकिन अगर जर्मलाइन म्यूटेशन है तो जर्मलाइन म्यूटेशन बॉडी के हर सेल में मिलेगी. क्यों? क्योंकि वो जाइगोट से ट्रांसफर हुई है, क्योंकि वो स्पर्म और ओवम से ट्रांसफर हुई है, और जाइगोट से ही सारे सेल बने हैं. तो जो भी सेल बनते जाएंगे उनमें ये म्यूटेशन ट्रांसफर होती जाएगी. इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट. ओके, सो ये दोनों टर्म्स, सोमैटिक म्यूटेशन, जर्मलाइन म्यूटेशन, ये मैं बार बार यूज करूंगा, ये आपने याद रखनी है टर्मिनोलॉजीज. अब बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जो हेरिडिटरी कैंसर्स के जुमरे में आते हैं, यानी ये जो म्यूटेशंस हैं इन कैंसर्स की वो कहाँ होती हैं? स्पर्म या ओवम में. एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं. रेटिनोब्लास्टोमा इज अ डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय जर्मलाइन म्यूटेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा. ली-फ्रामिनी सिंड्रोम, TP53, दिस इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, इसकी म्यूटेशन से होता है. मेलानोमा के साथ एसोसिएटेड एक जीन है CDKN2A, और ये भी हेरिडिटरी ट्रांसफर है. ये सारा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेबल विच यू शुड एक्चुअली रिमेंबर टू हैव अ ग्रिस्प ऑफ कि क्या क्या कैंसर्स ऐसे हैं जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो सकते हैं, बिकॉज ये सारी जो म्यूटेशंस हैं दीज आर हैपनिंग इन द जर्मलाइन. ओके,
या स्पर्म में हो रही हैं या ओवम में हो रही हैं. ओके, सो दैट वाज अ वेरी नाइस इंट्रोडक्शन अबाउट द कैंसर जीन्स. 4 कैटेगरीज हमने इनकी डिस्कस कर ली एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट के पर्टिकुलर जेनेरिक लीजन्स क्या हैं. सो बेसिकली मुझे इस हेडिंग में आपको ये पढ़ाना है कि कौन कौन सी म्यूटेशंस हैं जो पॉसिबल हैं. कुछ नाम पढ़ेंगे जैसे पॉइंट म्यूटेशन, जैसे ट्रांसलोकेशंस. तो देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. द हेडिंग इज जेनेरिक्स, जेनेटिक लीजन्स इन कैंसर. सो आइए स्टार्ट करते हैं. प्राइमरीली इस हेडिंग में बात ये हो रही है कि जो जेनेटिक लीजन्स हैं कैंसर में, they are basically divided into a wide range of categories. So for example, in some instances there is only single nucleotide change, यानी जो हमारा genetic sequence है जिसमें nitrogenous bases और nucleotides हैं, you know that adenosine and cytosine and guanosine, ये nucleosides जब you know DNA के structure में incorporate होते हैं, so they make a sequence. Like for example, we read it like this: A G C T A G, for example. Okay, so this is the sequence which is read from 5 prime to 3 prime direction. और अगर इसमें एक नाइट्रोजनस बेस भी चेंज है तो उसकी वजह से एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएगा और सच म्यूटेशन इज बेसिकली नोन एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज. समटाइम्स चेंज इतना छोटा नहीं होता, यानी एक न्यूक्लियोटाइड चेंज नहीं होता, बल्कि ग्रॉस क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी होती है. सो फॉर एग्जांपल, we have 23 pairs of chromosomes, so sometimes one entire chromosome is missing, sometimes one entire chromosome is additional, sometimes there is duplication of the number of chromosomes. So पूरा chromosome या add हो जाता है या delete हो जाता है. So it's a gross change. पूरा chromosome grossly change होता है. Sometimes what happens कि chromosomes आपस में इस तरह से interact कर जाते हैं कि suppose if this is one chromosome, this is another chromosome, so what happens कि these chromosomes exchange parts with each other. तो इसका ये हिस्सा इस पर आ गया, इसका ये हिस्सा इधर चला गया. Translocations. So these are also gross changes. So sometimes it's single nucleotides and it ranges to abnormalities large enough to produce gross changes in the chromosomes. Okay, in certain neoplasms genetic abnormalities are non-random and highly characteristic. Specific chromosomal abnormalities have been identified in most of the leukemias and lymphomas. So अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में. For example, Philadelphia chromosome एक specific type की translocation है जो कि एक specific type के ट्यूमर में known है. जब कभी वो ट्रांसलोकेशन दिखती है, वी ऑलवेज से कि ये पर्टिकुलर ट्यूमर है. सो दे आर सो कैरेक्टरिस्टिक. ओके, बट समटाइम्स दे आर नॉट दैट मच कैरेक्टरिस्टिक. टू स्टार्ट विद इस सेक्शन में ये कॉन्सेप्ट अगेन बहुत, जैसे मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोमैटिक म्यूटेशंस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्म लाइन म्यूटेशंस, बिल्कुल इसी तरह ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्राइवर म्यूटेशन एंड पैसेंजर म्यूटेशंस, ये दो तरह की म्यूटेशंस हैं जो हम ऑन्कोलॉजी में बड़ा रूटीनली ये नाम डिस्कस करते हैं. आपको अक्सर लिटरेचर में ही मिलेगा. ड्राइवर म्यूटेशंस आर दोज म्यूटेशंस दैट ऑल्टर द फंक्शन of characteristic cancer genes and thereby they directly contribute to the development of a given cancer. So again, one more time because this is important, driver mutations are mutations that alter the function of cancer genes and thereby directly contribute to the development of progression of a cancer. Cancer genes हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी थी. एक ऑन्कोजीन, दूसरा ट्यूमर सप्रेसर जीन, फिर एपोप्टोसिस और चौथी कैटेगरी थी genes which are important for interaction between tumor and host cells. अगर इन 4 कैंसर जीन्स का फंक्शन डायरेक्टली अफेक्टेड होता है, then such mutations are known as driver mutation. See, these are the main mutation. These are the primary mutation. These are the mutations जो अगर हो गई तो directly carcinogenesis का process होगा. That's why they are called driver. Driver main position पे होता है ना यार, गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर स्टीयरिंग राइट घुमा दे तो गाड़ी राइट घूम जाएगी, ड्राइवर स्टीयरिंग लेफ्ट घुमा दे तो गाड़ी लेफ्ट घूम जाएगी. दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. तो बिल्कुल इसी तरह जो ड्राइवर म्यूटेशंस हैं ये कैंसर डायरेक्टली कॉज करती हैं. दे आर यूजुअली एक्वायर्ड यानी कि सोमैटिक होती हैं, बट दे कैन ऑल्सो बी जर्म लाइन म्यूटेशंस. ओके, दे कैन बी इनहेरिटेड. अगर इनहेरिटेड होंगी विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट जर्म लाइन म्यूटेशंस. बाय कॉन्ट्रास्ट द पैसेंजर म्यूटेशंस आर acquired mutations that are neutral in terms of fitness and do not affect the cellular behavior. So passenger mutations are mutations which are observed in a cancer but they are not directly associated or they do not directly cause cancer themselves. Okay, so
If only passenger mutations are present, perhaps the cancer will not happen because driver mutation is important. Okay, it is now appreciated that particularly in cancers caused by carcinogen exposure such as melanoma and smoking related lung cancer, passenger mutations greatly outnumber the driver mutations. But still, passenger mutations alone are not enough. We need driver mutations for a cancer to happen. Okay, now despite their apparently innocent nature, ऐसा लग रहा है ना सुन के कि पैसेंजर म्यूटेशन बेचारी शरीफ सी और बिल्कुल नाइव किस्म की म्यूटेशंस हैं, इनसे कैंसर वैंसर नहीं हो रहा. अब ये ऐसा भी नहीं है. देयर इज मोर एंड मोर डेटा कमिंग अप शोइंग कि पैसेंजर म्यूटेशंस का भी कोई रोल शायद हो सकता है. जीनोमिक्स में एक्चुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत तेजी से चेंज हो रही है बिकॉज मैंने आपको बताया नई टेक्निक्स आ रही हैं जैसे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग. इन इस तरह की टेक्निक्स यूज करके वी आर generating more and more data and our understanding is changing day by day. Okay, in carcinogen associated cancers, mutational analysis has provided definite evidence that most genomic damage is directly caused by carcinogen in question. For example, before sequencing melanoma genomes, the causative role of sun exposure in this cancer was debated. यानी लोग ऐसे भी थे जो मानते थे कि melanoma sun exposure से होता है, but इसका काउंटर आर्गुमेंट भी लोग देते थे. लेकिन जीनोम स्टडीज यानी एनजीएस और सीक्वेंसिंग स्टडीज से पता लगा है कि बहुत सारी ऐसी जीन्स इन्वॉल्वड होती हैं, उनमें म्यूटेशन होती है which are linked to the damage by ultraviolet light. So this then supports the hypothesis कि sun exposure है तो ultraviolet light exposure है, ये है तो mutations हैं और melanoma हो रहा है. So kind of latest technologies such as sequencing and identification of mutations is actually helping to understand the causative factors of different cancers. A second more nefarious effect of passenger mutation is that they create genetic variants that, while initially neutral, may provide tumor cells with a selective advantage and in the setting of the therapy. यानी ये जो पैसेंजर म्यूटेशंस हैं, सपोज ये ट्यूमर है, इसमें जो मेन म्यूटेशन है वो तो ड्राइवर म्यूटेशन होगी, बट पैसेंजर म्यूटेशन क्या करती हैं कि अगर इसको आप ट्रीट करेंगे, इफ यू गिव सम सॉर्ट ऑफ थेरेपी देयर, तो ये थेरेपी से रेजिस्टेंस में दे मे प्ले अ रोल. देयरफॉर पैसेंजर म्यूटेशंस ये दिखने में शरीफ लगती हैं बट दे हेल्प द ट्यूमर टू ग्रो, जिसका मतलब ये है कि काफी नास्टी है. ओके अच्छा, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करनी है मुझे, गौर से इनको सुन लीजिए क्या है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. सो फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट पॉइंट म्यूटेशन. दे कैन आइदर एक्टिवेट और इनएक्टिवेट द प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑफ द अफेक्टेड जीन डिपेंडिंग ऑन द प्रिसाइज पोजीशन एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशंस दैट कन्वर्ट प्रोटोऑन्कोजीन इनटू ऑन्कोजीन generally produce a gain of function. ये सारी बातें हम कर चुके हैं. And as a result of this, the activity of the cell is increased, cell proliferation is increased, as a result of which tumor happens. Point mutation का मतलब ये है कि in the genomic sequence at a particular point there is a mutation. If this happens, we call it point mutation. Okay, right. The tumor suppressor gene that is most commonly affected by point mutation in cancers is p53, which is the Gargen type of tumor suppressor gene. तो अगर tumor suppressor gene p53 में, TP53 is the tumor suppressor p53, इसमें अगर loss of function mutation होगी तो ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि अब ट्यूमर सप्रेस करने वाला कोई नहीं है. ये सारा कॉन्सेप्ट मैं बहुत डिटेल में इस वीडियो के स्टार्ट में समझा चुका हूं. Okay, so point mutation is one category of genetic mutation. The other category is the gene rearrangement. Now, gene rearrangement का मतलब ये है कि जीन अपनी एक पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे जंप ऑन करेगा और वहां की जीन हो सकता है यहां आ जाए. So that is called rearrangement. नाम से जाहिर है अगर जीन की rearrangement होगी तो उसे हम नाम देंगे gene rearrangement. It may be produced by chromosomal translocation or inversion, यानी बाकायदा क्रोमोसोम का एक हिस्सा. So for example, if we have a chromosome here and then let me draw something with a different color. So suppose the other chromosome is this one, and what happens as a result of mismatch translocation कि इस क्रोमोसोम का ये हिस्सा और इसकी ट्रांसलोकेशन हो गई और अब जो नई पिक्चर बन रही है वो कुछ इस तरह से है. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा ब्लैक था लेकिन यहाँ इसका ब्लैक पोर्शन निकल के इधर आ गया, ऑरेंज पोर्शन निकल के इधर आ गया. दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. इस ट्रांसलोकेशन की वजह से जीन अब सारी रीअरेंज हो चुकी हैं एंड दैट may cause cancer. Okay, these rearrangements can activate the proto-oncogene. इस rearrangement की वजह से proto-oncogenes activate हो जाती हैं, over express होती हैं और proto-oncogene का काम है increase करना क्या चीज, cell proliferation. ज़्यादा cell proliferation होगी तो tumor formation होगा.
Okay, and these are seen in a lot of different diseases. For example, Burkitt lymphoma में this is observed in 90% of the cases. For example, जहाँ ये translocation होती है between chromosome number 8 and chromosome number 14, which leads to the overexpression of c-Myc gene. c-Myc is a proto-oncogene. If it is overexpressed, it will lead to cancer formation. So suppose one of this chromosome is chromosome number 8, the other one is chromosome number 14, and this is the translocation. So this can lead to activation of Myc and can lead to cancer. Another example is follicular lymphoma, a reciprocal translocation between 14 and 18. So there is 14 and 18 chromosomes involved, और अब एंटी-एपोप्टोटिक जीन BCL2 एक्टिवेट हो जाती है. देखो, एपोप्टोसिस अगर होगी तो सेल डेथ होगी, राइट? और एंटाई अपोप्टोसिस का मतलब ये है कि सेल डेथ नहीं होगी. सेल डेथ नहीं होगी तो सेल प्रोलिफरेशन होगी. सो ये जो एंटाई अपोप्टोटिक जीन है विच इज BCL2, वो फॉलिकुलर लिम्फोमा में देखी जाती है अगर 14 और 18 क्रोमोसोम्स के बीच में ट्रांसलोकेशन हो जाए. इट कैन लीड टू फॉलिकुलर लिम्फोमा. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन रीअरेंजमेंट. ओके, पॉइंट म्यूटेशन की हमने बात की. P53 हर की एग्जाम्पल आपने याद रखनी है. एक तो ये कि पॉइंट म्यूटेशन होता क्या है, फिर किस कैंसर में क्या एग्जाम्पल है. सो पॉइंट म्यूटेशन कॉमनली सीन इन P53, genetic rearrangement seen in a lot of diseases such as Burkitt lymphoma, such as follicular lymphoma. Okay, इन दोनों केसेस में देयर इज इंक्रीज सेल सर्वाइवल और इंक्रीज सेल प्रोलिफरेशन. देन देयर इज अनदर एग्जांपल जिसमें जब ये ट्रांसलोकेशन होती है तो कोई एक नया प्रोटीन बन जाता है. इस कैटेगरी में देयर वाज या तो ट्यूमर सप्रेसर जीन, प्रोटो ऑन्को जीन्स एक्टिवेट हो रही थी या एंटाई अपोप्टोटिक जीन एक्टिवेट हो रही है. बट इस केस में व्हाट विल हैपन, काइमेरिक प्रोटीन बनेगी. यानी जब ट्रांसलोकेशन होगी तो इस ट्रांसलोकेशन के प्रोडक्ट की वजह से जो प्रोटीन बनेगी that will be something new, that will be something bizarre. इसकी typical example है Philadelphia chromosome. The Philadelphia chromosome is produced when there is a translocation between chromosome number 9 and chromosome number 22. और इसके नतीजे में होता यह है कि दो जीन्स BCR and ABL, BCR is present on chromosome number 22 and ABL on chromosome number 9, they are rearranged. इनका फ्यूजन हो जाता है और इसकी वजह से ये जीन बनती है जिसको हम कहते हैं BCR ABL जीन. यानी सपोज यहां पर एक पार्ट BCR एक जीन मौजूद थी, यहां पे ABL मौजूद थी, तो अब जो नया क्रोमोसोम बन गया है that is genetic rearrangement, and now we have a segment which is BCR ABL जीन सेगमेंट. और ये जो जीन सेगमेंट जनरेट हुआ है, इस जीन सेगमेंट से देयर विल बी ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी, जिसका मतलब ये है कि नॉर्मल सेल विल बी कन्वर्टेड इनटू अ ट्यूमर सेल नाउ. ओके, सो डिफरेंट तरह की जेनेटिक रीअरेंजमेंट्स हैं. एक रीअरेंजमेंट वो थी जो बर्किट लिम्फोमा और फॉलिकुलर लिम्फोमा में देखी, जिसमें ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटोऑन्कोजेन थी या एंटी अपोप्टोटिक जीन BCL2. दूसरी हमने रीअरेंजमेंट ये देखी जिसमें काइमेरिक प्रोटीन यानी एक नई प्रोटीन बन जाती है जैसे BCR ABL. दिस इज नॉट अ नॉर्मल प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसलोकेशन 922. और 922 के ट्रांसलोकेशन के रिजल्ट में जो क्रोमोसोम बन जाता है उसे कहते हैं Philadelphia chromosome. Now this Philadelphia chromosome is characteristic of chronic myeloid leukemia, CML. Okay, now so that was an example, BCR ABL. All this detail is way too much for you to understand at the moment, but remember the concept is कि दो जीन्स अब एक नया प्रोडक्ट बना रही हैं. इस तरह की एक और एग्जांपल है लंग कैंसर में विच इज EML ALK. सो EML जीन और ALK जीन ये भी एग्जांपल है रीअरेंजमेंट की, और इस रीअरेंजमेंट की वजह से अब जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज EML ALK एंड दिस इज सीन इन लंग कैंसर. और एक्चुअली अगर ये म्यूटेशन मौजूद है, अगर इस तरह की रीअरेंजमेंट मौजूद है तो एक पर्टिकुलर तरह की थेरेपी दी जाती है इन पेशेंट्स को. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई टारगेट्स फॉर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कि अगर ये म्यूटेशन अवेलेबल है तो एक पर्टिकुलर ड्रग काम करेगी, अगर ये म्यूटेशन अवेलेबल नहीं है तो वो पर्टिकुलर ड्रग काम नहीं करेगी. दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. ओके, तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक लीजन्स. पॉइंट म्यूटेशन की हमने बात की, फिर हमने जेनेटिक रीअरेंजमेंट्स की बात की. अब वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिलीशंस. समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि पार्ट ऑफ द जीनोम इज डिलीटेड और उस डिलीशन के नतीजे में जो भी उस जगह का फंक्शन था दैट विल बी कॉम्प्रोमाइज, उस जीन का फंक्शन विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड. ओके, सो
for example, there is retinoblastoma में deletions have been reported, which is actually in the gene retinoblastoma gene, उसका नाम भी यही है. So such genes, and there can be deletions in P53, which is a very important tumor suppressor gene. So deletions obviously will mean loss of function. अब अगर loss of function tumor suppressor gene में होगा, so it will lead to cancer formation. So that sort of stuff, okay? Very important concept. Then there is a concept of genetic amplification. Sometimes what happens कि हमारी बॉडी में कुछ normal proto-oncogenes हैं. For example, MYC is a proto-oncogene. लेकिन अगर ये किसी भी वजह से, रेडिएशन की वजह से या केमिकल्स की वजह से या whatsoever reason, अगर MYC प्रोटो-ऑन्कोजीन एक्सपैंड कर दे अपना एक्सप्रेशन प्रोफाइल, और अब देखिए मिक कितना बड़ा हो गया. सो दिस इज ओवर एम्पलीफाइड. सो इफ मिक इज ओवर एम्पलीफाइड, दैट विल लीड टू बिग मिक. और अब ये जो बिग मिक है, दिस इज नो मोर प्रोटो-ऑन्कोजीन, दिस इज नाउ सिंपली ऑन्कोजीन. ओके, सो प्रोटो-ऑन्कोजीन नहीं रही अब ये क्या बन चुकी है? ऑन्कोजीन. सो दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ हैपेंस एंड वी कॉल इट जीन एम्पलीफिकेशन. मिक की एग्जांपल इन्होंने यहां एक्सप्लेन की है. सेम आल्सो हैपेंस for HER2 gene in breast cancer. So HER2 is also overexpressed in breast cancer patients with the same mechanism, amplification of HER2. Okay, और फिर ये हम चेक करते हैं by a process which is known as FISH. ये खाने वाली फिश नहीं है, ये फ्लोरेसेंट इन साइटू हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है जिससे हम चेक करते हैं कि जीन एम्पलीफिकेशन कितनी ज्यादा हुई है. बहरहाल दिस इज नॉट अ टॉपिक राइट नाउ. Another problem that can happen is aneuploidy. Aneuploidy का मतलब ये है कि क्रोमोसोमल नंबर जो है वो नॉर्मल नहीं होगा. इनफैक्ट इट विल नॉट बी मल्टीपल ऑफ 23. We have chromosomes, somatic cells में we have 46 chromosomes, right? और ये 46 chromosome का breakup ये है कि 23 times 2 मतलब 23 father से 23 mother से, which means कि 46 is a multiple of 23, is a 2-time multiple. तो अगर कोई ऐसी disease है जिसमें chromosomes 23 times 3 हैं, which means a number of 69, तो 69 is also a multiple of 3. लेकिन say for example if somebody have chromosome 57, that's not a multiple of 3, so multiple of 23. So if any chromosome number is not a multiple of 23, the disease is known as aneuploidy, and many cancers are associated with aneuploidic stage. Okay, so that's the simple concept. The same thing is all written here with some detail which is not so important for your exam, so I'm going to skip them. Then the concept of microRNA is very important. देखो microRNAs जो हैं they have been recently identified. अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल recent का मतलब ये है कि कल identify हुए हैं. It has been, I would say, a couple of decades now, but they are very small RNAs, single-stranded RNAs, only about 20 to 22 nucleotides in length, और इनका काम है as negative regulators of genes. So basically they are suppressors. They suppress genes. Okay, they inhibit gene expression. So they are inhibitors, they are suppressors, और किसी हद तक ये मैसेंजर आरएनए को भी डैमेज करते हैं और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन भी करते हैं. मतलब ओवरऑल फंक्शन इज टू सप्रेस द थिंग, टू डाउन रेगुलेट द जेनेटिक एक्सप्रेशन. और ये जो डाउन रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक एक्सप्रेशन है व्हिच इज द जॉब ऑफ माइक्रो आरएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सम कैंसर्स. देखते हैं अभी कैसे. इन व्यू ऑफ देयर इंपॉर्टेंट फंक्शन इन सेल ग्रोथ, differentiation and survival, it is not surprising that accumulating evidence indicates that microRNAs can contribute to carcinogenesis. यही बात हम कर रहे हैं अभी. Specifically if the target of a microRNA is a tumor suppressor gene. Again, ये कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है यार. देखो ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है इसका काम है ट्यूमर को सप्रेस करना, यानी ये सेल को ग्रो नहीं होने देगा. अब अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन पर कोई माइक्रो आरएनए आकर एक्शन कर ले तो ट्यूमर सप्रेसर जीन तो गई काम से. जब ये गई काम से तो ट्यूमर सप्रेस कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, ट्यूमर हो जाएगा. सो माइक्रो आरएनएज व्हिच कैन सप्रेस द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स आर समटाइम्स नोन एज oncomeres. Onco is the word for cancer. miRNA के लिए miRNA. So oncomeres are those miRNAs. These are those microRNAs which are involved in formation of cancers.
ओके, एंड देयर आर मेनी आइडेंटिफाइड, बहुत सारे माइक्रो आरएनएज आइडेंटिफाई हुए हैं जो कैंसर के साथ एसोसिएटेड है। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन को माइक्रो आरएनएज इनहिबिट करेंगे तो कैंसर हो जाएगा। ओके, सिमिलरली या कॉन्वर्सली, इफ एन माइक्रो आरएनए इनहिबिट्स ट्रांसलेशन ऑफ एन ऑन्कोजीन, a reduction in the quantity of the function of microRNA will lead to overproduction of the oncogene product. Such relationships may have been established by microRNA profiling. Well, this is all too much detail, not recommended for you to study. This concept was important कि microRNA gene expression को inhibit करते हैं, suppress करते हैं. Okay, right. Now the last bit that we have to comment on is the epigenetic modification. एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस का मतलब ये है कि डीएनए की जो एक्सप्रेशन प्रोफाइल है, देखो वो या तो चेंज होगी अगर कोई म्यूटेशन हो जाए। म्यूटेशन का मतलब ये है कि डीएनए की सीक्वेंस में चेंज हो जाए, लेकिन डीएनए की सीक्वेंस में अगर नो म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन नहीं है, फिर भी जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज हुई है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। बेसिकली होता ही है कि जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है उसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स होती हैं, सच एज हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, देयर आर सम मिथाइलेटेड स्टफ अवेलेबल, सो मिथाइलेशन होती है। इन हिस्टोन्स और मिथाइलेशन की वजह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डीएनए एक्सपोज होते हैं, और जब वो एक्सपोज होते हैं तो वो अवेलेबल होते हैं, और वो अवेलेबल होते हैं तो वो एक्सप्रेस होते हैं, यानी प्रोटीन बनती है। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दें हिस्टोन की और मिथाइलेशन की, तो वो पार्ट्स जो अवेलेबल थे अब वो बिकम अनअवेलेबल, और जब वो अनअवेलेबल होंगे तो डीएनए क्लोज होगा। डीएनए क्लोज होगा तो नो एक्सप्रेशन। जब एक्सप्रेशन नहीं होगी तो इसे हम कहते हैं कि ये डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन, और वो जिसमें एक्सप्रेशन होती है उसे हम नाम देते हैं इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ यूक्रोमैटिन। इतनी सी बात है। ठीक है, सो डीएनए में जो एक्सप्रेशन चेंजेस हैं वो म्यूटेशन की वजह से भी होते हैं और विदाउट म्यूटेशन भी हो सकते हैं, एंड if they are without mutation, this is known as epigenetic modification. So you will recall from chapter 1, उसमें हमने पढ़ा भी था ये कि epigenetics refer to reversible heritable changes. These are heritable, okay, and they are reversible as well. So methylation, histone changes can be reversed in the gene expression that occur without mutation. That's the definition. Okay, all right, and this is usually happening in the, as I told you, in the methylation profile या in the histone modification. histone जो proteins हैं, DNA अगर hypomethylated हो रहा है या DNA अगर hypermethylate हो रहा है, इस बेसिस पर DNA की availability change हो जाती है. Okay, so in normal differentiated cells the major portion of the genome is not expressed. Not expressed का मतलब unavailable. Unavailable का मतलब heterochromatin. Okay, now these regions of the genome are silenced by the DNA methylation. So जब methylation होगी तो DNA express नहीं होगा. On the other hand, cancer cells are characteristically they represent DNA hypomethylation. बड़ी मजे की चीज है यार ये। देखो, अगर ये क्रोमोसोम है और इस पे मिथाइलेशन हुई हुई है, बहुत सारी मिथाइलेशन, तो ये अनअवेलेबल है, और ये अनअवेलेबल होने की वजह से इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं हो रही। लेकिन कैंसर में ये होता है कि ये जो मिथाइलेशन है इसको हटा दिया जाता है, हाइपोमिथाइलेशन की स्टेट जनरेट कर दी जाती है। इस हाइपोमिथाइलेशन की वजह से अब ये अनअवेलेबल से क्या हो जाता है, अवेलेबल। ज्यादा जीन एक्सप्रेशन मतलब ज्यादा सेल डिवीजन मतलब ज्यादा कैंसर चांसेस। आ रही बात समझ में? और बाज एरियाज को इट कैन ऑल्सो हाइपरमिथाइलेट। सो बेसिकली जो ट्यूमर एनवायरनमेंट है वो कंट्रोल करता है कि किस डीएनए के रीजन को, अब सपोज डीएनए का ये रीजन है, इसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन मौजूद है, इस एरिया को कैंसर क्या चाहेगा, इस एरिया को शट डाउन करे या इस एरिया को एक्टिवेट करे। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो कैंसर की तो दुश्मन है। कैंसर चाहेगा कि इस जीन को शट डाउन किया जाए। इस जीन को शट डाउन करने का मतलब है कि यहां पर हाइपर मिथाइलेशन होगी। अगर कोई ऐसा रीजन है जो, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि इट इज अ प्रोटो ऑन्कोजिन रीजन, प्रोटो ऑन्कोजिन रीजन को
कैंसर क्या करना चाहेगा, एक्टिवेट करना चाहेगा। तो एक्टिवेट करने के लिए इस एरिया को हाइपोमिथाइलेट किया जाता है। सो जो कैंसर एनवायरनमेंट है इट स्मार्टली रेगुलेट्स कि किन एरियाज को हाइपर मिथाइलेट करना है, किन एरियाज को हाइपोमिथाइलेट करना है। और इन एपिजेनेटिक चेंजेस की वजह से कैंसर बड़ी स्मार्टली सेल्स को ग्रो करवाने में कामयाब हो जाता है। फिर यहाँ इन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं कि फॉर एग्जांपल टी सेल ल्यूकीमिया में कौन सी जीन्स हैं विच आर सपोज टू प्ले अ रोल, बट दैट इज काइंड ऑफ अननेसेसरी डिस्कशन हियर, बिकॉज हम जब स्पेसिफिक कैंसर्स पढ़ेंगे, जब हम ल्यूकीमिया पढ़ेंगे, तब उसकी जेनेटिक प्रोफाइल पढ़ेंगे। यहाँ जो कॉन्सेप्ट मुझे देना था एपिजेनेटिक चेंजेस का, हाइपर मिथाइलेशन और हाइपोमिथाइलेशन का, आई हैव डन दैट जॉब। ओके, सो मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जब मुलाकात होगी देन वी विल टॉक अबाउट कि जो कार्सिनोजेनेसिस का प्रोसेस है, यानी कैंसर होने का प्रोसेस, वो मल्टी स्टेप प्रोसेस है और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं कैंसर होने के लिए। सो लेट्स स्टॉप दिस वीडियो हियर। आपसे मुलाकात होगी नियोप्लेजिया की अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।